Hello everyone. Hi. How is everyone? Can someone please comment in the chat box if my audio and video are clear? एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ. Can someone let me know if my audio and video are clear, please? Okay, I think we're good to go. Hi everyone. So a quick introduction. So yeah, my name is Vangshu. I am a fourth year graduate from Punjab Engineering College, and in this video, basically, I'll be telling you my entire journey, right from my first year to a point where I was sitting in the interviews of Amazon, and I finally cracked Amazon. So the main motive of this video is to let you know basically what should be the right path, right? Because back when I started, there wasn't जितनी आजकल गाइडेंस वीडियोस है उतनी तब नहीं थी. ठीक है, तो आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स थ्रू आउट माई जर्नी. तो द मेन एम ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू गाइज अवेयर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? डूज एंड डोंट्स. तो आई होप यू हैव द लिंक ऑफ this thing, right? Can anyone confirm? इसका लिंक है ना आप लोगों के पास? फिर मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट. वी आर गुड टू गो. ओके, परफेक्ट. तो इसका थोड़ा लेआउट चेंज कर लेते हैं. ठीक है. So the topic of today's session is how I learned DSA and finally cracked Amazon. So first, let's start right from the beginning. So a funny story, right? When JE happened, I actually had good enough marks that I was getting a computer science in my college, which is Peck or Punjab Engineering College, which is in Chandigarh. So I was getting CSC, but I chose EC for some unknown reason. I know that sounds a little absurd and weird, but that's what I did. And when I look back now on why did I do it, that's probably because of lack of guidance. In my mind, I had something like, hey, CSC folks only sit in front of the computer the entire day. They just code and stuff. They don't have a social life, etc. But that was my assumption, right? I wasn't very proactive to ask some of my seniors that, hey, can you please guide me or something. तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, राइट? Whenever you are about to make a major decision in your life, always seek for guidance. Guidance won't harm you, it will only help you. ठीक है. तो मैंने मैंने ईसी ली. ठीक है, मैंने सीएससी छोड़ दी. एंड ऑनेस्टली मुझे ये रियलाइजेशन हुई आई थिंक इन सेकेंड ईयर में मुझे ये रियलाइजेशन हुई दैट ओ व्हाट अ ब्लंडर डिड आई मेक. तो 2 साल आई वाज इन अ ड्रीम दैट इट वाज फाइन टू टेक ईसी, बट honestly it was not, right? It gets difficult to manage studies as well because electronics के subjects are a little tough. ठीक है, थोड़े इंट्रिगिंग होते हैं, थोड़े डिमांडिंग भी होते हैं, टाइम चाहिए होता है. एंड आई एम अ पर्सन जिसको CGPA थोड़ी ठीक ठीक रखनी थी, 9+ रखनी थी. तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बट एनीवे ठीक है, ईसी ले ली, कोई बात नहीं. लेट्स सी हाउ आई लर्नड DSA, व्हाट मिस्टेक्स डिड आई डू, व्हाट steps did I make, and finally I learned DSA and cracked Amazon and 2 other companies. We'll talk about it. ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में आई हैड C++ as a college subject. Right in my first semester, one of the main subjects which we had was C++. Now, the main problem was I wasn't really getting what was taught in the college lectures. Okay? Right from the first lecture, the teacher was like, "Hey, there's a compiler, there's an interpreter, machine code, binary code." सीधा एकदम से जो टेक्नोलॉजी की jargons होते हैं वो फेंक रहे थे इधर उधर, right? Which I wasn't able to grasp, and I think if anyone is new to coding, उसके लिए ये दिक्कत होगी. ठीक है, अब हमें ऑलरेडी तो नहीं पता ना what is compiler interpreter. So that was the case with me. I felt very overwhelmed and I was not able to understand anything.
So that is when I asked one of the seniors that, hey, can you please tell me about some course or something जिससे मुझे help हो सके to get good marks in this subject. So he told me there's a course by Coding Ninjas which is Introduction to C++. So you can buy that. ठीक है. तो I got this course, particular course by Coding Ninjas, and he gave me his referral. तो मैंने referral apply किया, got a good discount, and I started this course. तो इस कोर्स में काफी सारी चीजें थी. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था. फ्लो चार्ट्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल एंड लूप्स. तो काफी सारी चीजें थी जो कि लिखी हुई है, जो कि बेसिक से चीजें होती है व्हेनेवर वी स्टार्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड इफ यू जस्ट वंडरिंग कि सी प्लस प्लस क्यों चुनी, बस बस यही था यार रीजन की कॉलेज सब्जेक्ट था. ठीक है, आई डिड नॉट थिंक अ लॉट कि सी प्लस प्लस स्टार्ट करे, जावा स्टार्ट करे, पाइथन स्टार्ट करे. एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ आई लुक बैक, अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता probably I wouldn't have started to code. तो ऐसा था. तो कोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. मुझे कोर्स काफी अमेजिंग लगा. राइट, व्हाट अ बिगिनर वांट्स इज कि सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होके बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में बताया जाए. दैट इज व्हाट अ बिगिनर वांट्स. ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कोर्स ऑफर्स. स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है. ठीक है, एंड क्वेश्चंस की जो सिलेक्शन है ना, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. और क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है. ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस ऐसे आगे डाल दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक बिगिनर को चाहिए होता है कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट. स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इज ऑलरेडी देयर. कॉन्फिडेंस के लिए जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत अच्छे वे में लगाए गए. जैसे सबसे पहले इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है. ठीक है, तो अगर उनको कोड करेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा कोडिंग करने में. दैट इज व्हाट दिस कोर्स ऑफर्स यू. And apart from that, TA support was amazing. I personally like teaching assistant support. And I think Coding Ninjas has absolutely aced it. तो मुझे कोई डाउट होता था, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती थी, तो आई यूज्ड टू ask it out through the TA window. And I think everything went good. ठीक है, तो एवरीथिंग वाज गुड. ठीक है, तो आई थिंक आई वाज हियर ऑन पॉइंटर्स और समथिंग. दैट इज व्हेन ऑनेस्टली आई स्टार्टेड टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट. मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग सा हो रहा है, कोडिंग में कुछ नहीं रखा, तो छोड़ देते हैं. तो फिर जस्ट टू गेट थ्रू माय कॉलेज एग्जाम्स, आई रेफर टू दिस रिसोर्स ऑन यूट्यूब विच इज mysurgery.com. तब आई थिंक बहुत सारे चैनल्स नहीं होते थे. राइट, एवरीवन स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड. तो कोविड से पहले बहुत कम चैनल्स थे विच टीच कोडिंग. तो mysurgery.com वाज वन ऑफ दोस चैनल्स विच वर प्रीटी फेमस बैक देन, एंड उनकी अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट है. तो आई जस्ट रेफर टू दीज टू रिसोर्सेज एंड आई गॉट थ्रू माय एग्जाम. एंड अभी तक आई डू नॉट हैव एनी एम्बिशन कि मुझे क्या करना है लाइफ में. आई एम लाइक कि जैसे चल रहा है चलते रहने दो. ठीक है, आइडियली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर यू शुड एक्सप्लोर. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करो, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली आपको आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है. ठीक है, इंटरेस्ट ऐसे जादू से तो नहीं आता. दैट इंटरेस्ट इज जनरेटेड और इंड्यूस्ड बाय ट्रायल एंड एरर. हमारे टाइम पे there was no one to guide us, and honestly I wasn't very proactive either to go and ask my seniors and all. I was just in a dream, a very easy dream. I used to chill, I used to hang out with my friends. But ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा. But you should also be career oriented, which I wasn't, to be honest. ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहा. एंड आई एंजॉयड द रेस्ट ऑफ माय टाइम. कुछ नहीं हुआ, बस फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया चिल मारते हुए, नथिंग मच. ठीक है, फर्स्ट ईयर ऐसा हुआ. अब देखते हैं आगे मैंने क्या किया. सेकेंड ईयर में आई हैव डिवाइडेड थिंग्स इनटू थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, व्हिच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर. तो third semester में people used to come and talk about, hey, Python's gonna be very famous in the future, since everything is revolving around data, right? So one should have some knowledge about Python. तो मुझे लगा कि यार अच्छा ठीक है, पाइथन कर लेते हैं चलो. एंड पाइथन मैंने सुना था इज प्रीटी इजी टू. तो फिर मैंने पाइथन का एक यूडीमी पे कोर्स लिया. बिकॉज मैंने कोडिंग निंजा स्पेशली नहीं लिया बिकॉज आई वाजंट वेरी श्योर कि क्या है क्या नहीं करना है. एंड ऑल्सो इट वाजंट अ पार्ट ऑफ माय कॉलेज करिकुलम. तो आई थॉट लेट्स गो विद द चीपर ऑप्शन. यूडीमी पे सेल वगैरह लगी हुई थी, तो 400-500 रुपए में मैंने ये कोर्स ले लिया. ठीक है, तो मैंने कोर्स किया. मैंने आई थिंक बेसिक्स आई कवर्ड एवरीथिंग इन बेसिक्स इन पाइथन. ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ कर लिया था. जहाँ पे फंक्शंस आते हैं ना, जैसे जिप आ गया, मैप आ गया, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट.
आई गॉट ओवरवेल्म्ड एक्चुअली, ठीक है, मुझे लगने लगा कि यार काफी सारे फंक्शंस है, तो एक एक चीज को मैं याद तो रख नहीं सकता, एंड तब गाइडेंस भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार प्रोबेबली कोडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो क्या ये करना है, छोड़ दो, यहीं पे मैंने कोर्स छोड़ दिया। नाउ जस्ट वांट टू टेक अ पॉज ओवर हियर। यार देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन में जैसे लिस्ट हो गई, सी प्लस प्लस में एरे हो गए, वेक्टर्स हो गए एंड ऑल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ द इनबिल्ट फंक्शंस, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देयर इज ऑलवेज गूगल, जिसको आप रेफर कर सकते हो इन ऑर्डर टू एक्चुअली हैव अ डिटेल्ड knowledge about the working of the functions and syntax kind of all. You just need to have an idea. Okay, this particular data structure has these functions, and I can make use of them as and when required. That is the main idea behind so many functions behind a data structure to make your life easy as a programmer. तो मुझे नहीं पता था, आई गॉट ओवरवेल्ड, आपको ओवरवेल्ड नहीं होना है अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो, ठीक है। तो फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, कोडिंग छोड़ देते हैं। बट देन वन ऑफ माय फ्रेंड ही केम एंड ही सेड कि यार तूने सी प्लस प्लस भी सीखी, तेरे पाइथन भी सीखी, अब if you don't do questions then it's all sort of like a waste, ठीक है। I'll just forget things, and then I essentially just wasted my hours on learning Python and C++. Instead you should do some questions, ठीक है। So at that point of time, me and my friend, we started doing questions on a platform called HackerRank. I'm sure everyone is well aware of HackerRank. Uh, so we started doing questions based on normal things, array strings, etc. So we did around 45 questions. What we used to do was we used to sit in the college library for I think 1 hour per day, and we used to solve one or two questions. But then, by the way, we used to code in Python. But then I started to see errors like TLE or space exceeded, something like that, or a segmentation error and all. But I used to think that this is Python's fault. I've written the code correctly, but this is Python's fault. But that was so wrong. That sounds so funny, right? If I look back now, that sounds so funny. TLE doesn't mean that Python is slow. It means that my code was probably a brute force solution of that particular problem. That was because I did not have knowledge about time and space complexity back then. ठीक है, अगर मुझे पता होता टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, नोटेशंस क्या होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो प्रोबेबली मैं वहीं से कंटिन्यू कर जाता और मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता, बट मुझे नहीं पता था। एंड आई एक्चुअली गॉट थोड़ा सा क्या रही, तो हर क्वेश्चन में टीएलई आ रहा है, ये क्या होता है, तो आई अगेन लेफ्ट कोडिंग फॉर द सेकेंड टाइम। वन थिंग विच आई वांट टू फोकस ऑन इज कि क्वेश्चंस करने से पहले ना थोड़े बहुत, अगर आप ठीक है इजी ठीक है, बट एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थोड़े से इजी मीडियमिश प्रॉब्लम्स, यू नीड टू नो स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आपको पता ही नहीं है स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप टीएलई को कैसे हटाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा टीएलई क्यों आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको इन चीज़ों का पहले से होना चाहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। ठीक है, पाइथन करी, पाइथन छोड़ दी, सी प्लस प्लस करी थी, सी प्लस प्लस छोड़ दी थी, ठीक है। दैट इज माई करंट सिनेरियो एज ऑफ नाउ, एंड आई एम इन माई थर्ड सेमेस्टर। देन समवन टोल्ड मी कि यार सीक्वल सीख सकते हो, सीक्वल का आगे बहुत स्कोप है, किसी से सुना ही था मैंने, ठीक है। आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम अ पर्सन इन माई क्लास. So I started learning MySQL on Udemy. Again, I learned a lot of things during this course. Okay, right from databases, how databases work, what is MySQL, what is a database management system, and SQL is pretty straightforward, right? So SQL आराम से हो रही थी, but then at some point I again felt a little bored. तो मैंने ये भी छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने C++ छोड़ दी, मैंने Python छोड़ दी करके, मैंने SQL करके छोड़ दी। थर्ड सेमेस्टर तक मैंने यही किया। Funny, I know. So now coming to the fourth semester, ठीक है, कॉलेज का फोर्थ सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर का, मतलब सेकेंड पार्ट। वी हैड डीएसए एज ए कॉलेज सब्जेक्ट। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का एक कॉलेज सब्जेक्ट था, ठीक है। तो आई वाजंट वेरी सीरियस टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट, यू नो व्हाट, we'll just refer to some YouTube videos and we'll just attend some college lectures and then get through this exam. And that's what I did. I just referred to some videos on YouTube, mysurgery.com, some other resources, attended all my lectures, attended all the college labs. We used to have labs for DSA,
And then there's a course on Udemy, I think Abdul Bari's course. I refer to that sometimes just to have a good understanding of things, but that is pretty much it. I just did very basics of things just to get through the exam. ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के सॉर्ट ऑफ एग्जाम भी हो गए. उसके बाद कोविड हैपेंड, राइट. कोविड आ गया था साथ में, और ऊपर से इंटर्नशिप साइकिल वाज आई थिंक 4.5 to 5 months अवे. 4.5-5 महीने रह गए थे इंटर्नशिप के. नाउ आई थॉट ऑफ कि अगर यार मतलब कॉलेज में आए हैं, ठीक है, इसीलिए इंटर्नशिप तो चाहिए. देखो सीधी सी बात है, मेहनत तो करनी है, बट मेहनत किस चीज पे करनी है दैट आई वाजंट वेरी अवेयर ऑफ. तो आई थॉट कि hey, I've done things in technology. I've learned C++, I've learned Python, and I've learned a little bit of MySQL too. So I think technology is my best bet. That is how I went into technology. ठीक है. Now is the time to get serious, right? Internship लेनी थी, तो I was like, yep, serious यार काफी ज्यादा होना है. एक सेकंड. Okay, somebody just asked a question. I am in 8th sem and haven't placed it. यार देखो, आई डोंट बिलीव इन कि कोई लेट होता है. ठीक है. इफ यू प्रैक्टिस इनफ, इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, यू विल गेट थ्रू. ऑल यू नीड इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. इस पे तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए. ठीक है. 70 to 80% ऑफ योर प्रेपरेशन इज डीएसए ओनली, बिकॉज उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिग्निफाई होते हैं टू द इंटरव्यूअर. Then, of course, some companies ask for CA subjects like object-oriented programming, computer networks, and DBMS, operating system design. भी आजकल some companies are asking for. तो ये चाहिए होता है, and of course a project. ठीक है. तो there is no such thing as am I late or not. I don't believe in all this, and I think times have changed. Some companies even encourage candidates who जिनके पास मतलब बेसिकली करियर ब्रेक होता है. ठीक है. उनको भी कई कंपनीज एक्चुअली प्रेफर, मतलब तुम देख रहे हो कि टाइम कैसे चेंज हुआ. ठीक है. तो ओके, मूविंग ऑन, कमिंग बैक टू द टॉपिक. इंटर्नशिप साइकिल वाज कमिंग. ठीक है. Let me hide it a little. Yep. ठीक है. Internship cycle was coming. It was time to get super serious. ठीक है. That is when I pledged कि यार अब मेरे को इंटर्नशिप लेनी है, मुझे कुछ ना कुछ मुझे टेक्नोलॉजी में ही जाना है, मुझे कुछ सीखना है. That is when I consulted one of my seniors. मैंने पूछा उनको कि hey, can you tell me what does it take to get into a tech company? So he said कि you need to be good in DSA, and of course there are other things too, but DSA is something जिसमें आपको mastery करनी पड़ेगी. There is no other way around. If you want to get into tech giant, DSA is a must. I was like, okay, तो मुझे कोर्स भी बता दो. तो he told me again कि coding ninjas की courses are pretty good, and I went ahead with that. ठीक है. कोर्सेज में कोर्स बहुत अच्छा था, बाय द वे. कोर्स इज लवली. अगेन डीएसए, आई वाज अ बिगिनर टू डीएसए, राइट. व्हाट अ बिगिनर वांट्स इज स्ट्रक्चर्ड कंटेंट एंड अच्छे क्वेश्चंस जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट, डाउट सपोर्ट. ये तीन चीजें चाहिए होती है इन माय ओपिनियन. स्ट्रक्चर्ड कंटेंट तो देखो कोर्स है तो ऑफ कोर्स है. टीए सपोर्ट, कोडिंग निंजास इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आउट देयर जिनके पास एक इतना बड़ा नेटवर्क है टीचिंग असिस्टेंट्स का, वो आर एक्चुअली विलिंग टू हेल्प यू, एंड उन्होंने की भी ड्यूरिंग माय टाइम. तो दैट वाज ग्रेट, कुडोस टू देम. एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. खुद सोचो, देखो, when you are learning something, you want to build your sort of aptitude towards a particular concept. If I am learning, suppose करो arrays, या फिर मान लो मैं लिंक लिस्ट सीख रहा हूँ, तो आई वुड वांट कि मेरे को लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर सा कंटेंट मिले, मुझे उसकी थ्योरी मिले, थोड़े से एमसीक्यूज मिले, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस मिले, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिगिनर बूस्ट हो. ठीक है. फिर धीरे 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 करके लेट्स इंक्रीज द लेवल and just upskill yourself. This is exactly what this course does for you. ठीक है. बहुत अमेजिंग कोर्स है, मेरे को तो अभी भी पसंद है. Sometimes still refer to this course for some things, and it's amazing. बहुत कुछ सीखा इस कोर्स में, स्टार्टिंग विद array strings. तो चलो ठीक है, पहले से आते थे थोड़े. Recursion backtracking. I cannot emphasize enough on how important this topic is. Heavily asked in interviews. कोई कंपनी उठा लो यार,
it is asked in almost every company यार. Recursion and backtracking, चलो ठीक है company भी छोड़ दो, but other data structures, the intermediate as well as advanced data structures, they depend on recursion. ठीक है. रिकर्जन बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छा है कोडिंग टेस्ट का, ट्रस्ट मी, यू लव इट. ठीक है. तो रिकर्जन बैक ट्रैकिंग अच्छे से किया मैंने, देन लिंक लिस्ट किया, स्टैक क्यूज, ट्रीज में अच्छे क्वेश्चन से अच्छी थ्योरी थी, अच्छा पढ़ाया था. प्रायोरिटी क्यू वाज अमेजिंग, ट्राइज अच्छा था, एवरीथिंग वाज अमेजिंग. बट ठीक है, चलो सब सब कुछ ठीक है, ग्रास डायनेमिक प्रोग्रामिंग एवरीथिंग इज ओके, बट आई फेल्ट कि मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग वीक है. ठीक है. मैंने कोर्स किया अच्छे से, मैंने क्वेश्चन भी कर लिए, जैसे तैसे करके कर लिए. ऑनेस्टली आई फेल्ट अ लिटिल demotivated sometimes because I wasn't able to do some questions, but the good part was stay support, as I just mentioned. तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, everything was good. Uh, I'll take your questions in a while, okay? Just let me finish a little part and then we'll take breaks and then I'll answer your questions for sure. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं chat box नहीं देख रहा. I'm seeing it, but I'll take questions in breaks. ठीक है, सब कुछ ठीक था, but I felt my dynamic programming is a little weak. मुझे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया डायनेमिक प्रोग्रामिंग में. तो ठीक है, मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया, आई जस्ट टेल यू हियर. बट ठीक है, कोर्स खत्म किया मैंने, बहुत अच्छा लगा कोर्स खत्म करके. एंड मैंने कोर्स खत्म किया था अबाउट आई थिंक 40 days, 1 महीना 10 दिन. तो मैंने काफी जल्दी कोर्स खत्म किया था, ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैड ओनली 4 to 5 months फॉर माय इंटर्नशिप्स. तो ठीक है, कोर्स कर लिया. आई एम नाउ वेल अवेयर ऑफ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सम ऑफ द एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल. बट आई फेल्ट कि यार प्रैक्टिस की कमी है, बिकॉज इन द कोर्स मुझे ना पता था सॉर्ट ऑफ कि इफ आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किससे होगा, है ना. अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के अंदर देयर आर क्वेश्चंस. सो इवन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन आई ऑलरेडी नो दैट दिस क्वेश्चन इज अ डीपी प्रॉब्लम. ठीक है. the thing which was lacking was random question solving. It's very important in interview preparation, random question solving. खुद सोचो यार, इंटरव्यू में आपको ये थोड़ा ना पता होगा कि स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, डीपी का क्वेश्चन है, हैशमैप का क्वेश्चन है ना. तो आदत होनी चाहिए रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग की. दैट इज व्हेन आई फेल्ट कि आई नीड टू प्रैक्टिस मोर इन ऑर्डर टू क्रैक इंटरव्यूज, क्योंकि ये चीज वाज सॉर्ट ऑफ पेंडिंग. ठीक है. zoom in a little. ठीक है, let me have a water break. तब तक I'll ask questions. Sorry, I'll answer questions. Um, ठीक है, I think it's a valid question, Sonu Singh. It happens with everyone. You don't need to be afraid of this. सबके साथ होता है यार. देखो, सारे आइंस्टाइन नहीं होते, सारे स्टड नहीं होते कि एकदम से सब कुछ आ जाए. It takes time. It takes consistency. As and when you do problems, you'll get to know about new concepts. That happens with everyone. That happened with me. That happened with so many people who get into good companies. ठीक है, तो you don't need to be afraid of this. Stay consistent. अगर कुछ नया टॉपिक पता चलता है तो उसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, अगली बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप वो कर लोगे. दिस इज द वे टू लर्न थिंग्स. And by the way, in a few days, I'll be posting a video here on Coding Ninjas channel, which is on a 4 month plan to crack product-based companies. तो उसमें मैंने ना काफी सारी algorithms I've written down in that doc. So if you do those algorithms only, then your chances of doing a new question will increase significantly. ठीक है, तो stay tuned for that video too. CPP, HTML, CSS, JavaScript. ठीक है, मतलब you're doing a sort of C++ and web development. One thing which I would say is PHP is a little outdated. तो PHP की जगह you should try with Node or Django or newer things like Go language. तो ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जो कि इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग है, right? There's no point in learning those technologies which are not very relevant in today's world. How many times should we revise DSA for coding interviews? DSA for coding interviews.
तो यार देखो, सब कुछ तो रिवाइज नहीं होता, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड लेट्स से दैट यू डिड से 300 400 क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, तो 300 400 क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं होंगे। तो द बेस्ट थिंग इज व्हाइल यू आर डूइंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनको तो ठीक है, बट जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत गुड क्वालिटी के लगते हैं, उनको मार्क कर लो। एंड जो क्वेश्चन खुद से नहीं होते उनको भी मार्क कर लो, ठीक है। फिर व्हाइल यू आर रिवाइजिंग उन चीजों को रिवाइज करो जो नहीं आती थी, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू गो। And I'm in my fourth sem and I'm doing DSA and CP in these summers. What will I mention if I don't make projects in my resume when I'll apply for internship? तो यार देखो, प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी वीडियोस है पहली बात तो यूट्यूब पे, एंड प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बन जाता है। इंटर्नशिप के लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए होता, दैट इज द रियलिटी। तो इफ यू कैन डेडिकेट 30 to 40 days फॉर प्रोजेक्ट्स देन इट्स वेरी गुड। अभी तो देखो टाइम होगा इंटर्नशिप कंपनीज को आने के लिए, तो 30 40 दिन में एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड इन सीपी, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स की नीड ना हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक है। इट कैन हैपन, स्पेशली इन कंपनीज लाइक गूगल, इट कैन हैपन। हाउ मेनी राउंड्स इन Amazon? There were, I think, 3 rounds, excluding OA. I have Darshan, I have already shared the link. Please check, ऊपर ऊपर कहीं पे होगा, नहीं मैं दोबारा डाल देता हूँ। मैंने लिंक दोबारा डाल दिया। When you completed your DSA first time, you were confident about it? Because I also just completed but not confident. यार देखो, कॉन्फिडेंस, आई थिंक कॉन्फिडेंट, देखो एक कोर्स करके आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू बी कॉन्फिडेंट और नॉट। कॉन्फिडेंस तब आता है जब यू डू रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग, when you are able to solve random questions using your past experience, using your learned concepts, वो करो, उसके बाद देखो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो नहीं हो रहे तो वही बात है, देखो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, देखो कि गलती को और ये स्पेकुलेट करो, क्या आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने लग जाते हैं? बिकॉज दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। मतलब ऐसे नहीं करना है। टेक अ पेन पेपर, राइट एवरीथिंग डाउन, ड्राई रन करो, देन देखो, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई अप्रोच सीखने को मिले, ठीक है। दैट हैपेंस विद एवरीवन, दैट हैपेंस विद मी एट दिस पॉइंट टू। अभी कल परसों ही मैं किसी लीड कोड पे कॉन्टेस्ट वो सॉल्व कर रहा था, तो मैंने वैसे डिस्कस सेक्शन खोला, आई फाउंड अ न्यू अप्रोच टू दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ होता है, नई चीजें तो ऑन द गो ही पता चलती हैं, ठीक है। आई थिंक अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा। ठीक है, कोर्स की बात आई थॉट कि यार रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले किया इंटरव्यू बिट क्यों किया? बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज क्वाइट फेमस, आई थिंक it was sort of new at that point of time, and the good part was it had structured content, structured questions, topic wise questions थे थोड़े, I agree, but इसमें टाइम वाला फैक्टर था, हर एक क्वेश्चन का ना एक टाइम था। तो मुझे चीज़ ये पसंद आई, एंड जो क्वेश्चन का लेवल था वो भी अच्छा था, तो मैंने सोचा यार पहले इंटरव्यू बिट कर लेते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो while I was doing interview bit I faced a lot of difficulties। देखते हैं difficulties faced। तो आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में टॉपिक पता था कि इस चीज पे ये टॉपिक लगना है, बिकॉज इंटरव्यू बिट इज स्ट्रक्चर्ड दैट वे ओनली, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, ठीक है। तो इसके कारण मेरे को डिमोटिवेशन भी हुई ऑनेस्टली, एंड इट इज नॉर्मल, एवरीवन हैज दिस फेस वेयर दे आर नॉट एबल टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। जैसे डिमोटिवेट होगी और वेस्टिंग योर ओन टाइम, just back yourself up, you can do it, consistency is the key, that is what I did, ठीक है। तो मैंने स्पेक्यूलेट किया कि गलती का हो रही है, तो मैंने देखो अपनी अप्रोच चेंज कर दी। मेरे को लगा कि मेरे को डिफिकल्टी फेस हो रही है, मेरे से नए क्वेश्चन नहीं होते थे, तो मैंने अपनी अप्रोच चेंज करी। एंड अप्रोच कैसे चेंज की? टू बी ऑनेस्ट आई सॉ यूट्यूब वीडियो जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या था वो हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। कभी कभार ऐसा होता है हमने ना क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा होता, वी जस्ट
we are just in a hurry that we don't even read the question in a correct way. The question is asking us to do something else, but we are trying to implement something else. That happens, I think, a lot of times. तो ऐसा नहीं करना है. Don't do this. Read the question at least twice or thrice. ठीक है? And then look at the constraints. Constraints are very important यार. कभी कभार we are trying to solve something in order of n, but sometimes it just happens that order of n solution does not exist. ठीक है? तो constraints को देखो, आइडिया लग जाता है कि यार n log n होगा, n होगा, n square भी चल जाएगा, n cube भी चल जाएगा. तो constraints actually play a very important role in problem solving. ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लिया, कंस्ट्रेंट्स देख लिए, देन यूजिंग योर प्रीवियस एक्सपीरियंस यू नीड टू कम अप विद डिफरेंट अप्रोचेस. ठीक है, एक नया क्वेश्चन पढ़ा, अब सपोज करो आपको लग रहा है कि यार मे बी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग 2 पॉइंटर्स. ठीक है, आपको लग रहा है, नॉट श्योर. ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, अच्छा 2 पॉइंटर सस्पेक्ट हो रहा है तो ट्राई करो. ठीक है, ड्राई रन करो, ड्राई रन करके देखो उसको कि 2 पॉइंटर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते जब तक यू आर नॉट प्रिटी श्योर कि अच्छा यार ये अप्रोच है. एंड आई हैव ट्राइड आउट 2 or 3 केसेस व्हिच सीम अ लिटिल फिशी टू मी, जो कि थोड़े वियर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस नहीं लेने हैं. एंड इफ योर एल्गोरिथम वर्क्स ऑन इट ऑन पेन एंड पेपर, देन देयर आर सम चांसेस दैट दैट एल्गोरिथम माइट बी करेक्ट. ठीक है, और ऑलवेज सिंपल सी बात है, देखो यार जब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने की ट्राई कर रहे हो तो पहले ब्रूट फोर्स निकालो एंड देन धीरे 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 करके यू नीड टू इंप्रूव टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. दैट इज द बेसिक फंडामेंटल. ठीक है, ये तो ऑब्वियसली होता ही है, एंड इंटरव्यूज में भी दिस दिस इज द थिंग व्हिच वी शुड फॉलो. ठीक है, ड्राई रन कर लिया, अब आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन इस अप्रोच से शायद हो सकता है. देन सबमिट करो. ठीक है, सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एक्सेप्ट हो गया, गुड थिंग, गुड जॉब. बट देन यू नीड टू ऑल्सो सी द डिस्कस सेक्शन. ठीक है, डिस्कस सेक्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोल्यूशन इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस. हैपेंस इन अ लॉट ऑफ केसेस. ऐसा भी हो सकता है देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू द सेम प्रॉब्लम, है ना. ऐसा भी हो सकता है यू शुड नो मल्टीपल अप्रोचेस टू अ प्रॉब्लम, ताकि अगर कोई न्यू प्रॉब्लम आए, क्या पता उसमें वो चीज अप्लाई हो रही हो. यू नेवर नो, राइट. इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन. तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया. ठीक है, अगर रॉन्ग आंसर आया, टीएल आया, कोई और एरर आई, देन गिव इट सम टाइम. ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़ा सा स्ट्राइव करो, देखो कि क्या गलती हो रही है, कौन सा टेस्ट केस नहीं चल रहा. देन अगर फिर भी नहीं होता, थोड़ा ट्राई किया आपने, लुक एट हिंट्स. ठीक है, कोड स्टूडियो या फिर लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे देयर आर हिंट्स अवेलेबल, तो हिंट्स को देखो. फिर थोड़ा आगे दोबारा ब्रेनस्टॉर्म करो कि अच्छा, यूजिंग दिस हिंट एंड माय प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. स्पेंड सम टाइम. नहीं होता तो डिस्कस सेक्शन पे जाओ. ठीक है, अगेन सेम थिंग, डिस्कस सेक्शन पे जाओ, देखो कि क्या कोई नया कंसेप्ट था जो आपको नहीं पता था. इज देयर अ न्यू कंसेप्ट व्हिच यू अर्लियर डिड नॉट नो अबाउट, और वर यू ट्राइंग टू ओवर कॉम्प्लिकेट द सॉल्यूशन व्हाइल द एक्चुअल सॉल्यूशन वाज वेरी इजी. ऐसा होता है कभी कभार, हम ना अपना ही गुस्से होते हैं क्वेश्चन में, पता नहीं कुछ कर रहे हैं, जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है वो बहुत इजी होता है. हैपेंस विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो देखो, स्पेकुलेट करो कि गलती का थी, देन उसको खुद से कोड करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सोल्यूशन को देख के छोड़ नहीं देना है, खुद से कोड करना है ताकि कॉन्फिडेंस आए. एंड देन अगेन प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन आफ्टर 15 days. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, I'll just answer some of your questions now. Following a DSA series is a good practice. It can be, देखो, there is no perfect roadmap for everyone. रोड मैप्स या फिर सीरीज का मेन एम इज टू गिव यू सॉर्ट ऑफ लाइक अ डायरेक्शन. ठीक है, तो उसको इफ यू टेक इट एज अ डायरेक्शन, इफ यू टेक इट इन अ राइट वे, एक्चुअली गुड. इंटर्नशिप के लिए सही टाइम कब होता है? व्हेन यू आर रेडी. मोस्टली इन कॉलेजेस इंटर्नशिप्स आर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर. मेरे कॉलेज में जैसे थर्ड ईयर में होती है, सम कॉलेजेस में फोर्थ ईयर में होती है. तो बाय देन यू शुड बी इंटर्नशिप रेडी, एंड दैट इज द आइडियल टाइम, आई थिंक. Baki, in some colleges, internships are also there in second year, first year, and to be honest, you don't have to wait for companies to come to your college. I've seen people जो कि first second year में off campus internships को crack कर लेते हैं काफी companies की. ठीक है, तो it's up to your preparation. ठीक है, जैसी preparation होती है, you can start applying. As simple as that. Okay, you graduated in May.
civil engineering branch. Can you give me some advice? देखो, before doing CP, you need to be clear about the fundamentals of that particular programming language. Let's say C++. So you need to be well aware of C++ के semantics, syntax, constructs, and then DSA knowledge होनी चाहिए. Given that you are good in DSA and uh, uh, are aware of basic programming constructs, CP करो, अच्छी बातें कर रहे हो. सीपी भी करने का एक वे होता है यार, लाइक सीपी इज अ स्पोर्ट, सीपी रिक्वायर्स टाइम. तो बेसिक बेसिक क्या होता है कि यार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड बेसिकली कॉन्टेस्ट तो बहुत सारे कोर्स लिया है तो ऑब्वियसली कोर्स विल हैव अ स्ट्रक्चर एंड कोर्स विल हैव गाइडेंस, एंड देन व्हाइल गिविंग कॉन्टेस्ट सब सॉल्व करो. ठीक है, अगर सपोज करो 2 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ट्राई करो कि तीसरा क्वेश्चन बाद में कर सको. ट्राई टू सी कि कहाँ गलती की. इफ देयर वाज अ न्यू कांसेप्ट, ट्राई टू लर्न दैट कांसेप्ट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. How to identify quality questions, that is where sheets come in. ठीक है, रोड मैप्स कम इन. वहां पे क्वालिटी क्वेश्चंस की ही लिस्ट होती है यार. तो दैट इज द मेन एम ऑफ शीट्स. ऐसे तो देयर इज अ सी ऑफ क्वेश्चंस, आर इज इन स्ट्रिंग्स ले लो, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो यार, कोई लिमिट ही नहीं है. बट जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, you'll find those things in DSA sheets, ST sheets. वहां पे is lead code free? It is free for, मतलब it's free till some extent. uh, brute force solution पे माइंड स्टक हो रहा है. ओके, अब ब्रूट देखो, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट तो है नहीं. जो एल्गोरिदम्स हैं, जो ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम्स हैं, वो लोग बनाते हैं कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बेसिकली बनाते हैं. अब हम इतने हैं तो है, मतलब इतने इक्विप्ड तो नहीं है. तो क्या होता है, देयर इज अ लर्निंग फेज इन विच यू लर्न एल्गोरिदम्स, यू लर्न न्यू थिंग्स. देन इज द एप्लीकेशन फेज वेयर यू एक्चुअली अप्लाई थिंग्स. पहले लर्निंग फेज को अच्छे से करो, अच्छे से एल्गोरिदम सीखो, अच्छे से क्वेश्चंस करो. फिर अगर नहीं होता, फिर देखो गलती का हो रही है, तो पहले ये करो. अच्छे से एल्गोरिदम सीखो, जो कॉमन एल्गोरिदम्स है उन पे उनकी वेरिएशंस करो, फिर नए क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो ये नोटिस अपने आप हो जाएंगे. इफ यू फॉलो अ गुड मेथोडोलॉजी, जो मैंने अभी वीडियो में एक्चुअली डिस्कस की. चलो ठीक है, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, अभी पहले इस पे वापस आते हैं. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो मैंने भी डिस्कस की, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन. जो आप लोगों के डाउट्स है ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डू फॉलो दिस अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ऐसी अप्रोच नहीं फॉलो करोगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The more hours you spend struggling right now, the more it will pay back when you're sitting in interviews. ठीक है, that is what happened with me. मैं इक्वेशन पे बहुत देर बैठा रहता था. ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि मैं बैठा ही रहता था, यूज्ड टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स. एंड व्हेन जब जब इंटरव्यूज की बारी आई, तो मुझे एक्चुअल दिखता था कि यार अच्छा यार, इतना जो टाइम लगाया है पहले, दैट वाज एक्चुअली वर्थ इट. ठीक है, एनीवे, difficulties faced discuss कर लिया. And then also when it came to random question solving, I followed Geeks for Geeks and Lead Code. Lead Code पे there is a top 100 interview problem की list, मैंने वो की थी. Geeks for Geeks पे मैंने ऐसे थोड़े से random question कर लिए थे, just to have some confidence. ठीक है, ठीक है, अब मैंने random question की भी solving कर ली. ठीक है, just a second. Cool, perfect. नाउ आई फेल्ट कि यार मेरी डीपी स्ट्रॉन्ग थोड़ी वीक. मैंने यहाँ पे भी ऊपर बताया था आपको, व्हाइल आई वाज डूइंग दिस कोर्स, मुझे लगा कि मेरी डीपी थोड़ी वीक है. बट आफ्टर डूइंग दीज प्लेटफॉर्म्स, आई स्टिल फेल्ट मेरी डीपी थोड़ी वीक है. तो आई फॉलोड आदित्य वर्मा की यूट्यूब का चैनल है उनका, उनकी बहुत अमेजिंग डीपी प्लेलिस्ट है. मेरा सारा डीपी ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया, right from DP on arrays to DP on strings to MCM partition problems, DP on trees, उन्होंने सब कुछ क्लियर करवा दिया था. Right from a point where you actually think of a recursive solution, then you move on to a memoized solution, and then finally to an iterative solution. ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए, मेरा डीपी ठीक हो गया. ठीक है, तो अगर आपको हो रहा है थोड़ा स्ट्रगल, तो यू कैन फॉलो दीज रिसोर्सेज, दे आर प्रीटी गुड. ठीक है, इंटर्नशिप साइकिल आ रहा था. ठीक है,
and then that is how my basically fourth semester ended. Then is my I think थर्ड ईयर. ठीक है, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ एक्चुअली मेरे कॉलेज में. थर्ड ईयर में कंपनीज कम, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कंपनीज कम फॉर इंटर्नशिप्स. ठीक है, तो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आई. अभी तक मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का आपको लेवल बता देता हूँ. मैंने थोड़े बहुत रैंडम क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने डीएसए का कोर्स किया था. मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था. मेरा लेवल वाज बिलो इंटरमीडिएट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज अगेन आई हैड ओनली अबाउट 4.5 to 5 months, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बट जितनी हुई मैंने कर ली. I faced a lot of rejections. ठीक है, I failed online assessment of RCGM, D-Shock, Goldman Sachs, Microsoft, Expedia, Mastercard. इन कंपनीज के मेरे से OA ही क्लियर नहीं हुए. Some because of DSA, some because aptitude weak थी, some because ये सब्जेक्ट्स वीक थे. ठीक है, तो कोई बताने वाला ही नहीं था. And I wasn't very proactive कि यार मैं खुद पूछूं किसी से कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता. तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज फेल हो गई. एंड जिन कंपनी में OA क्लियर हुआ, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस में क्लियर हो गया था, मीडिया टेक में क्लियर हो गया था, सोर्सेज में क्लियर हो गया था, तो इनमें मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया. And when I speculated ki why that is happening, that was because I did not have exposure to solving problems in a timed environment. और बहुत मतलब क्या ही बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना मर्जी डीएसए कर लो, अगर टाइम्ड environment में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, then it's sort of like a waste. ठीक है, तो मेरा अभी तक का ये स्पेकुलेशन था. अच्छा, मेरे को बहुत रिजेक्शंस मिल गई, बट एटलीस्ट आई वाज सिंसियर इनफ टू लुक बैक वेयर आई वेंट रॉन्ग, एंड इट वाज कि टाइम्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं दिए. ठीक है, डिमोटिवेशन हो यार, बहुत ऑब्वियस सी बात है. कभी ऐसा नहीं हुआ था इतनी सारी कंपनी से रिजेक्ट हो गए, ऐसा लग रहा था यार मेहनत तो की है, गलती का है. बट अगेन डिमोटिवेशन इज नेचुरल. डिमोटिवेशन इज ओनली नेचुरल. You should learn to deal with demotivation. Turn your demotivation into your strength. गुस्सा आ रहा है ठीक है, बुरा लग रहा है ठीक है, but if you let it just run over you, you are wasting your own time. बाकी सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, and I'm sure no one wants this. ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है. कंसिस्टेंसी इज द की. लगे रहो लगे रहो लगे रहो, इवेंचुअली हो जाएगा. मेरे साथ हुआ है. मैंने तो देखो यार सेकंड ईयर में स्टार्ट किया है, तो मतलब सेकंड ईयर में भी, बल्कि सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट किया. ठीक है, तो मैंने काफी लेट स्टार्ट किया. तो इफ आई कैन डू इट, इफ आई कैन क्रैक कंपनीज लाइक Amazon बीइंग फ्रॉम ECE, तो आप तो कर ही सकते हो, और कोई भी कर सकता है. इट्स जस्ट अबाउट राइट एटीट्यूड. ठीक है, तो डिमोटिवेशन हुई, तो मेरे मन में आया यार सीपी ट्राई करनी चाहिए. आई हर्ड कि यार लोग सीपी करते हैं, तो सीपी ट्राई कर लेते हैं एक बार. तो मैंने ट्राई की, मेरे को पसंद नहीं आया ऑनेस्टली. तो मैंने सीपी ट्राई की, मैंने दिए एक दो कॉन्टेस्ट, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं यार सीपी नहीं ट्राई करते हैं. मैंने एक्चुअली आई आस्क्ड सम ऑफ माय सीनियर्स कि शुड आई डू सीपी और नॉट, तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स था ऑनेस्टली. एंड यही होता है, देखो सीपी इज लाइक ए स्पोर्ट. इफ यू वांट टू डू सीपी, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. पूरा अंदर घुसना पड़ेगा. ठीक है, कॉन्टेस्ट देने पड़ेंगे, हार्डशिप से फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज होती है सीपी की. एंड आई पर्सनली थॉट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. मेरे को ईसी भी करनी है, मुझे डीएसए भी करना है, बहुत सारी और चीजें करनी है. तो probably if I do CP, I'll be losing on a lot of things. That was my thought process. Someone might agree to disagree, but that was my thought process at that point of time. ठीक है, I kept on practicing, और मैंने timed environment में थोड़ा टेस्ट देना स्टार्ट किया. इंटरव्यू बिट पे टाइम लगा के और फोन पे टाइम लगा के मैंने थोड़ा टेस्ट देना स्टार्ट किए. And then I cracked internship opportunity from General Electric as a data and information engineer. ठीक है, हाइड करना भूल गया था, सॉरी. यप, तो ठीक है, इंटर्नशिप क्रैक करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी ऑनेस्टली. इट्स अ गुड कंपनी. तो माय इंटर्नशिप वाज बेस्ड ऑन AWS, तो मैंने AWS का बहुत कुछ सीखा इन दो 6 months. डेटाबेसेस पे आई वर्कड ऑन पोस्टग्रेस, स्क्रीनप्लम एंड ऑल. तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया. ठीक है, एंड then during my third year I also became a teaching assistant. My thought process was कि I have some free time, right? I do have some free time. Why not I try to monetize my skill. ठीक है, बहुत सारे motives थे. एक था कि I want to monetize my skill. Teaching assistant is a paid internship. ठीक है, तो एक था money motive. दूसरा था I don't want to lose consistency. जितना मैंने अभी तक सीखा है, if I don't practice regularly, I lose consistency. तो मेरे को लगा कि ठीक है, money is the thing, consistency is the thing.
थर्ड इज क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. व्हेन यू टीच समथिंग टू समवन ना, आपको पूरा क्वेश्चन का सब कुछ पता होता है, ठीक है, इतनी क्लैरिटी आती है कॉन्सेप्ट में. इफ यू आर टीचिंग डीपी टू समवन, आपको पूरा पता होगा यार उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट फ्रॉम रिकर्सिव सोल्यूशन टू मेमोइज्ड सोल्यूशन टू इटरेटिव सोल्यूशन, देन उसमें स्पेस ऑप्टिमाइज कर दिया, आपको सब कुछ पता होगा. तो जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आता है ना थ्रू टीचिंग, दैट इज ट्रिमेंडस, ठीक है, एंड उससे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी. And during this teaching assistant journey, uh, uh, I, I just came to a realization that I like to teach. I used to go an extra mile for students. I used to call them. I used to set up G meets to question को समझाने के लिए. तो अच्छा था, good experience overall. And बीच में I used to practice things on lead code just to stay in touch. ठीक है. Then during third year, JP Morgan का Code for Good आया, ठीक है. तो now JP Morgan, which is a good company based in the US, it's a sort of like a bank. तो उनका they don't hire on campus anymore if you don't know about it. तो उनका Code for Good एक टेस्ट आता है. You have to do that in order to get through the company into the company. तो मैंने वो पहले तो टेस्ट पास किया. It was based on DSA, ठीक है. एंड देन टेस्ट के बाद एक हैकाथॉन होती है. हैकाथॉन में बेसिकली दे टेस्ट योर स्किल्स. तो मैंने हैकाथॉन में पार्ट, ऑब्वियसली टेस्ट क्लियर हो गया, तो आई टुक पार्ट इन हैकाथॉन एंड वी वन दी हैकाथॉन. माय टीम वन दी हैकाथॉन. एंड मैंने जो अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे नॉलेज ली थी AWS के ऊपर, वो मैंने अप्लाई करी, ठीक है. एंड प्रॉब्ली दैट लेड टू माय कंट्रीब्यूशन टू द टीम. ठीक है. सब कुछ चल रहा था. एंड देन व्हाट आई थॉट वाज कि मेरे ना इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट कर रखी थी, थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं की थी. एंड माय मेन फोकस वाज ऑन AWS ओनली, बाय द वे, कि AWS पे मतलब क्लाउड रिलेटेड चीज़ें करनी है, डेवऑप्स रिलेटेड चीज़ें करनी है. बट साथ में एक सब्जेक्ट था न्यूरल नेटवर्क्स एंड डेटा साइंस का कॉलेज सब्जेक्ट. तो आई थॉट कि यार ठीक है, आप कर रहे हो तो ढंग से कर लेते. तो मैं न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी अच्छे से एंड डेटा साइंस भी काफ़ी अच्छे से कर गया था. दिस इज माई सिनारियो टिल माई थर्ड ईयर. ठीक है. थर्ड ईयर भी होगा, फोर्थ ईयर भी आते हैं. उससे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के. आ, देखो यार, CP इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी कंपनी, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली, ठीक है. डायरेक्ट है जैसी कंपनीज के लिए है थोड़ी CP इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका लेवल ऊपर है. गूगल के लिए भी थोड़ा, गूगल का लेवल भी ऊपर ही होता है देन Amazon, Microsoft. तो इफ यू आर एमिंग फॉर अ वेरी गुड कंपनी, देन CP इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज CP इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. अगर DS अच्छे से कर लोगे तो यू कैन गेट थ्रू. मैंने CP नहीं किया, आई डिड गेट थ्रू. इज लीड कोड प्रीमियम गुड और गुड और अदर रिसोर्सेज? आई थिंक प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है. फ्री रिसोर्सेज आर गुड इनफ. Which data structures we should focus more? देखो, array strings की questions are heavily asked in interviews. तो arrays, strings, TP, graph, trees, ये तो आने चाहिए. मैथ कितना आना चाहिए? Maths is not widely asked in interviews. थोड़ा बहुत आना चाहिए. It should be good enough. How long did I take to feel that I'm good? I'm getting better at DSA. I got this feeling during my fourth year. I'll talk about it in a while. ठीक है. थर्ड ईयर तक के एंड तक आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ बट नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. आई टॉक अबाउट दिस. मैथ और DSA फर्स्ट? DSA फर्स्ट. मैथ से थोड़ा बहुत आना चाहिए, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आना चाहिए. Which DSA sheet? I'll talk about it. अभी मैं बात करूँगा. Is DP important? Very important. DP is dynamic programming. I would say B.Tech.
हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की सेक्शन है, तो क्या पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाओ डीएसए से पहले या पहले डीएसए? मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम समझ क्वेश्चन समझ नहीं आया। हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन है, तो क्या पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाऊं डीएसए से पहले या पहले डीएसए? व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि पहले नॉर्मल प्रोग्रामिंग के कॉन्स्ट्रक्ट सीखो, नॉर्मल फॉर लूप व्हाइल लूप ऐसी ऐसी चीजें सीखो, एंड देन वंस यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दिस, देन तो उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लो एंड देन गो विद डीएसए, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस है दोज आर बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. How did you practice DSA? Stick to one, two platforms or any sheets? I'll talk about it. जो मेरा फोर्थ ईयर है उसमें है. I'm confused where to start. यार देखो, वही बात, पहले बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट सीखो प्रोग्रामिंग के, गेट कंफर्टेबल विद इट, डू सम क्वेश्चंस, देन डू डीएसए. डीएसए में कंफर्टेबल हो जाओ, जो बेसिक एल्गोरिथम्स है, बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, डू देम. थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी जर्नी में, हैपेंस विद एवरीवन बिकॉज वी आर नॉट computer scientists who can deduce algorithms just like this. It takes time. Once you're good with that, start practicing random questions. You'll be good at it. Trust me. Best free resources to learn DSA. You can visit our free platform Code Studio. वहाँ पे काफी guided paths वगैरह हैं. तो वहाँ पे you get structured content too. ठीक है. Anyway, getting back to my fourth year now. Just a second. ठीक है. तो अभी तक डीएसए में डीएसए स्पेसिफिक बात बोल रहा हूँ. डीएसए में आई एम नॉट सुपर कॉन्फिडेंट. आई एम लाइक कि आई एम ओके इन इट. ठीक है, मतलब मेरे से मीडियम क्वेश्चन हो जाता था थोड़ा सा स्ट्रगल करके, बट दैट वाज इट. अभी तक का ये लेवल था. अभी तक आई हैड ऑफर्स फ्रॉम जेपी मॉर्गन एंड जनरल इलेक्ट्रिक, बट अगेन आई थॉट कि आई कैन डू बेटर. आई स्टिल हैव एन ईयर. एक साल बहुत ज्यादा होता है. आई कैन डू बेटर. तो आई हैड हंगर टू स्ट्राइव फॉर मोर. तो मैंने तब ना स्ट्राइवर की एसडी शीट की काफी वो थी, तारीफ होती थी ऑन लिंक्डइन एंड ऑल. And he just I used to post a lot of reviews too. So I got very curious कि यार अच्छा इतने लोगों ने की है, तो why can't I try it? And for people who were asking कि आपने क्या फॉलो किया, मैंने एसडी शीट्स ट्राई फॉलो की थी. तो मैंने इन 30 दिनों में, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैंने इतना कुछ सीखा इन 30 दिनों में. ठीक है, आई यूज्ड टू सिट फॉर 6 to 7 hours डेली. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस से बहुत कुछ, मतलब जो मैंने अभी अप्रोच इस वीडियो में बताई है ना पहले, पूरा प्रॉपर अप्रोच ऑन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई अप्लाइड द सेम अप्रोच इन दीज 30 days. एंड इट, मतलब दीज 30 days चेंज्ड माय लाइफ. आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, एंड देन आई थॉट कि मेरा ग्राफ एंड ट्राइज आर अ लिटिल वीक, तो आई रेफर टू स्ट्राइवर्स playlist and they also got cleared. And then I used to practice lead code daily challenge too. So I did all of this during my initial phase of fourth year. Then PhonePe came onto campus. Okay, I was eligible for PhonePe, but unfortunately I failed in PhonePe. Okay, there were two questions. One was of topological sort, which I did. The other one was, मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद, बट मुझसे वो हुआ नहीं. आई फेल्ट वेरी बैड कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की फिर भी नहीं हुआ. एंड वो हो गया क्वेश्चन, बट वो बाद में हुआ. तो देन ऑफ कोर्स आई केम टू अ कंक्लूजन कि यार अभी भी टाइम्ड इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस बहुत कम है, बहुत कम है. तो टाइम्ड इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस करनी. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू गिव कॉन्टेस्ट. ठीक है, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दे दिया, कोड स्टूडियो पे कॉन्टेस्ट दे दिया, थोड़े थोड़े वर्चुअल कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट करे. एंड ऑफ कोर्स डेली लीड कोड चैलेंज में करता ही करता था. इससे जो स्पीड है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दैट इम्प्रूव्ड अ लिटिल. ठीक है, and then I got an interview opportunity from Google in last year, I think in around September, August, September. So I was very happy. ठीक है, but unfortunately I got rejected in hiring committee round. तो just a summary of what I did. I revised पूरी एसटी शीट मैंने अच्छे से रिवाइज कर ली थी. तो पहले एक फोन इंटरव्यू हुआ था, देन 4 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड इन दी हायरिंग कमिटी राउंड. और क्वेश्चंस उन्होंने बैक ट्रैकिंग के पूछे, रिकर्जन ट्री, स्ट्रिंग डीबी, प्रायोरिटी की. वन थिंग व्हिच आई नोटिस्ड वाज
गूगल के लिए यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। 45 मिनट्स में दे कैन एक्सपेक्ट अप टू 2 क्वेश्चंस। तो और वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दे आर लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़े मीडियम हार्ड लेवल के रहते हैं। तो आई थॉट कि यार मतलब आई क्लियर्ड सम ऑफ द राउंड्स, आई गॉट रिजेक्टेड इन हायरिंग कमिटी राउंड। आई ऑब्वियसली फेल्ट बैड, बट आई टुक इट इन अ पॉजिटिव नोट कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गए तो, but at least I am sort of on right track. If I was able to clear three rounds of Google, then I'm on the right track. ठीक है। I used to practice more. लीड कोड का डेली चैलेंज कॉन्टेस्ट वगैरह तो वर्चुअल देने ही देने हैं। एंड देन अर्श को एक यूट्यूबर उनका 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज समथिंग आया था उस टाइम पे, आई थिंक इन अराउंड जनवरी समथिंग। तो आई यूज्ड टू डू दैट। तो 30 दिन मैंने ये किया अगेन टू स्टे कंसिस्टेंट। Programming में यार staying consistent is very important, cannot emphasize enough on it. Intensity is मतलब consistency is greater than intensity. Consistent रहोगे, नई चीजें सीखोगे, टच में रहोगे, तो नई नई अप्रोचेस दिमाग में अपने आप आएंगी, है ना। तो बहुत सही रहता है कंसिस्टेंट रहो। ठीक है। तो आई स्टेड कंसिस्टेंट एंड दैट इज व्हेन Amazon विजिटेड माय कैंपस। ठीक है। अब ठीक है, Amazon ने विजिट किया, क्या करना है, कोड स्टूडियो पे मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। वहां पे Amazon का मैंने खोला, वहां पे Amazon के ओए के 3-4 टेस्ट थे, मैंने वो सारे अटेम्प्ट किए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए तो मैंने उनको कर लिया अच्छे से कि क्यों नहीं हुए। देन आई रिवाइज्ड CS सब्जेक्ट्स। CS कोर सब्जेक्ट्स Amazon पूछ लेती है, ऊप्स पूछती है, ओएस पूछती है, डीबीएमएस पूछती है, तो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिए। ठीक है। फिर आया ओए। ओए में डीएसए पे एक क्वेश्चन था सॉर्टिंग का, एक था प्रायोरिटी क्यू का, मेरे से दोनों हो गए। डीबगिंग का था, बहुत इजी था, वर्स्टल असेसमेंट बहुत इजी था। एप्टीट्यूड वाज भी ओके। जो मेन पार्ट होता है, आई थिंक जो मेन फाइट होती है इसमें, दैट इज ऑन दिस पार्ट, डीएसए वाला। तो एक प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन था और सॉर्टिंग का क्वेश्चन था। नाउ मेनी पीपल टेंड टू स्किप प्रायोरिटी क्यू फॉर सम रीजन। बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू गूगल के इंटरव्यूज में भी पूछी गई थी, अमेजोन में भी पूछी गई है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देन 2 टेक्निकल इंटरव्यूज थे, इनमें डीबी के क्वेश्चन थे, ट्राई के क्वेश्चन थे, ट्राई को भी गलती से भी स्किप नहीं करना। देन स्ट्रिंग्स, एरेज एंड एक डिजाइन या डेटा स्ट्रक्चर का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था इन माय फर्स्ट इंटरव्यू ओनली। तो थोड़ा टफ लगा था, बट थोड़ा फाइट मार के आई वाज वेरी क्लोज टू द सॉल्यूशन। तो आई थिंक द इंटरव्यू वाज सैटिस्फाइड विद दैट। एंड देन प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन था। देखो प्रायोरिटी क्यू इट केम इन द ओए एज वेल एज इन माय इंटरव्यू, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन बार रेजर राउंड था, जो कि हायरिंग जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर के साथ होता है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स का पूछा, उन्होंने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का पूछा। नाउ व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ स्लाइड फॉर वन फॉर माय प्रोजेक्ट एंड वन फॉर माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। स्लाइड का मेन पर्पस था कि उनको लगे कि आई एम विलिंग टू गेट दैट जॉब, आई एम विलिंग टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप। तो मैंने एक स्लाइड बना ली थी, उसमें मेरे प्रोजेक्ट का फ्लो ये वगैरह, इंटर्नशिप में मैंने क्या किया, सब कुछ अच्छे से लिख दिया था। एंड आई थिंक द इंटरव्यूअर वाज हैप्पी विद इट। डीएसए में उन्होंने कार्य का क्वेश्चन पूछा था, व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो भी हो गया था। एंड देन आई गॉट द ऑफर। तो ये मेरी जर्नी थी। देखो इट वाज नॉट लाइक कि एक रात में हो गया। इट टुक मी अराउंड 2.5 years टू गेट गुड इन डीएसए। ठीक है। हैड अ लॉट ऑफ लेट डाउन्स, बट ठीक है, लेट डाउन्स सबके साथ होते हैं, बट मतलब उनको अपने ऊपर रन ओवर नहीं करने देना। यू नीड टू लर्न टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे। रोज ऐसा लगेगा कि ये नहीं आता, बट कोई बात नहीं। कीप दोज थिंग्स असाइड, फोकस ऑन द नेक्स्ट डे, फोकस ऑन कि आज मैंने इतने क्वेश्चन करने हैं, आज मैंने इतना नया कुछ सीखना है। ठीक है। अब सॉल्व करो कॉन्टेस्ट, तो लीड कोड पे दो, कोड स्टूडियो पे दो, कोड चेफ कोड फोर्सेस पे भी दे सकते हो। अब सॉल्व करो। if you're able to solve 3 questions, speculate कि चौथा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे when you do this, when you follow this approach, पेन पेपर पे सॉल्व करके करोगे, definitely it is my guarantee, then मतलब you'll get good in DSA। ठीक है। I'll just take your questions real quick। कहाँ से स्टार्ट करूँ, which teacher? um I would say if you're looking out for structured content, get a course. That's the best way to do so. Otherwise, there are a lot of free resources available, but the content is not very structured. तो खुद देखो कि what do you want. How to revise while learning DSA.
So while learning DSA, if you encounter problems which you weren't able to solve, or you find some problems a little special, mark them and then revise on a daily on a weekly basis. Yep, sort of. I learned basic DSA and then I worked on projects. I basically made a good project during my internship. Uh, after internship hours. What to do after RS and string in systematic manner. यार इसके लिए ना मेरी एक वीडियो आएगी अभी एक 4 month प्लान ऑन हाउ टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताया है ठीक है एक स्नीक पीक सा दे देता हूँ फटाफट से तो इसमें मैंने ना सब कुछ बताया देखो arrays matrices strings तो ये वीडियो आएगी अभी थोड़ी दिन में आ जाएगी तो you can follow that if you follow this approach for 4 months you can get into a pretty good company. कौन सी डीएसए शीट कर कौन सा शीट करूँ और कैसे मोटिवेशन करूँ तो यार मल्टीपल ऑप्शंस बहुत सारी शीट्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल पिक क्रेडिबल शीट्स जिनके बहुत सारे रिव्यूज हैं ये हैं वो हैं एंड शीट्स को भी फॉलो करने का मेन मोटिव इज कॉन्सेप्ट लर्निंग ठीक है कॉन्सेप्ट अगर कुछ नहीं हो रहा इट्स ओके बिकॉज यू आर एट योर लर्निंग फेज राइट नाउ यू आर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट्स द मेन मोटिव बिहाइंड डीएसए शीट्स लर्न करो कॉन्सेप्ट्स को देन व्हेन यू सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस यू विल सी कि देखे देखे क्वेश्चन आ रहे अपने आप मन में इंट्यूशन आएगी इफ यू डिड द शीट इन अ फेथफुल वे तो ऐसे होता है मोटिवेशन सबकी हमेशा हाई नहीं रहती लाइफ इज ऑफ कोर्स made of ups and downs, and so is DSA learning. ठीक है तो that is the reality. Is it good when I know basics of all but I can't build logic and math? मतलब it's not good. मतलब if you are practicing daily and still are not able to do it, then it is not good. मतलब it's not good यार मतलब बेसिक्स पता है एंड लॉजिक नहीं बना पा रहे एंड मैथ तो चलो छोड़ दो मैथ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता ठीक है स्पेशली फॉर इंटरव्यूज थोड़ा बहुत आना चाहिए बट दैट्स इट लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा तो देखो क्यों नहीं बिल्ड हो रहा इज इट समथिंग कि आपको कुछ पता ही नहीं पहले से इज इट अ न्यू अप्रोच और समथिंग if it's a new approach learn that approach so that whenever a similar question comes again in future you are able to solve it so this is the way to go ahead 12th marks matter no not really 12th के मार्क्स नहीं मैटर करते ऑनलाइन एग्जाम की वजह से कुछ नहीं पढ़ा इट्स फाइन there's nothing like I'm late or something if you are dedicated enough if you are sincere you can do anything लैंग्वेज भी नहीं आती I know intermediate DSA so should I join coding ninjas on course or not देखो जो कोर्स है दैट इज फॉर बिगिनर्स इफ यू आर न्यू टू डीएसए द कोर्स इज फॉर दैट पर्पस सीपी कोर्स ले सकते हो इफ आर इनटू सीपी इफ यू वांट टू ट्राई सीपी बट मैं नहीं बोलूंगा कि कोर्स लो आई थिंक गाइडेंस वैसे भी यूट्यूब पे मिल जाती है तो या it's okay if you're not able to think the optimal approach. See, we are not computer scientists, as I said. We are people who are trying to learn new things. So take it as a learning curve. जब भी हम कुछ सीखते हैं, right? If you're not able to understand everything in one go, तो it's okay. If you are not able to come up with approaches, then solution देखो. देखो कि क्या क्या नया था. Is it a new approach? Was I overcomplicating the problem? ठीक है तो देखो कि गलती का और ये ऐसे से करोगे स्पेकुलेट करोगे नई चीज सीखोगे अल्टीमेटली गेट बेटर रिकर्जन देखो यार रिकर्जन का बेस्ट वे है करने का ट्री बनाओ रिकर्सिव के रिकर्जन ट्री बनाओ सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग ठीक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो बेसिक स्टार्ट करो पीएमआई से स्टार्ट होता है रिकर्जन देन 3 स्टेप्स टू सॉल्व रिकर्जन बेस केस रिकर्सिव कॉल स्मॉल कैलकुलेशन ठीक है तो ऐसे सॉल्व करो जब भी हो गया उसके बाद रिकर्सिव ट्री बनाओ ऐसे से करोगे इफ यू प्रैक्टिस गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस
you'll definitely get good at it. Yup, happened with me as well. Happens with everyone. B.Tech biotechnology वाले सब कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होता. Nowadays companies don't prefer CS folks like they earlier used to do. ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी कर सकता है. डिस्टेंस डिग्री से एमएनसी में जॉब मिल जाती है. आई एम एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट इट. Can you suggest any paid courses for DSA? If yes, if you're someone who is a beginner, you can go ahead with coding ninjas courses. It's pretty good. I used ST Sheet by Striver. फ्रंट एंड डेवलपर को बिग कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है. सिर्फ STE. I think these companies mostly hire for STEs. They don't specifically hire freshers for front end developers. अगर if you're someone who is in front end and आपको लगता है कि आप बहुत good हो, बहुत amazing हो, तो you can rather go for startups who actually give a lot of value to scales rather than DSA. 4 year gap, does it matter to get it? No. Uh, as I said, key companies are getting modern. They have special programs for people having career gaps. तो ऐसा कुछ नहीं होता. As in many parts, they mention searching and sorting after so many concepts, but searching like binary search is important even for arrays. Why so? Not sure, but yeah, searching and sorting is pretty much. But this topic pretty much comes in under arrays only. I agree to this. How much time will it take to learn DSA? Totally up to your appetite यार. जितना जल्दी कर सकते हो, जितनी ज़्यादा sitting दे सकते हो, the better it is. I'm in third year. How much I should wait for getting interviews at FANG? For internships, you can देखो दो option है. Internships के लिए if your college is good enough, you probably get good companies on your campus only. Otherwise, you can build a good resume, apply for referrals, and get an off-campus internship or a placement. Only getting DSA for Amazon, not really. You need to know basics of CS subjects too and projects too. Just a second, I'll have some. Guys, let's wrap up in about 5 minutes. So, जो भी question है, you can type. DSA with Python is absolutely fine. No problem in this. But just know that some companies do not allow coding in Python. They only prefer C++ or Java. But most of the good companies out there, I think, are comfortable with Python too. How to get interview at Amazon? तो यार मेरे केस में तो Amazon came on campus, but if you apply through referrals, ठीक है, अपना network strong करो LinkedIn पे and work on your GitHub, work on DSA, and if you get a good referral, then it's not very hard. Can you provide with your top questions sheet? तो यार देखो, मेरी थोड़े दिनों में एक वीडियो आएगी रिगार्डिंग 4 months plan to crack top कंपनीज. तो उसमें मैंने मेन एल्गोरिदम्स मेंशन कर दिए जो कि यार इंपॉर्टेंट. तो अगर वो एल्गोरिदम्स करते हो, चाहे जहां मर्जी से करो, किसी भी शीट से करो, डजंट मैटर, वो एल्गोरिदम्स करो, देन डू रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग. इससे आपका लॉजिक इंप्रूव होगा. लीड कोड पे आई थिंक व्हेन आई इंटरव्यू, देखो
पहली बात तो नंबर डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. इफ यू थिंक कि अगर एक बंदे ने 1,000 क्वेश्चन कर लिया, 700 क्वेश्चन कर लिया, उसको सब कुछ आता होगा, ऐसा नहीं है. मैंने ऐसे भी देखा है जिनके 200 क्वेश्चन हैं बट दे आर वर्किंग इन गूगल. ठीक है, 200 क्वेश्चन पे क्वालिटी मैटर्स. बट मेरे आई थिंक व्हेन आई अभी मेरे 500 कुछ के आसपास है. बट आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑन गीक्स फॉर गीक्स एज वेल. एंड Amazon के टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 450. आफ्टर BCA Amazon जा सकते हैं क्या? आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज should be okay with that. What is the right time for computer fundamentals? डिपेंड्स यार. देखो, अगर आपको दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो you can do alongside your preparation in DSA, but if not, you can have some dedicated time after DSA. Depends on your appetite. Yup, no problem. No problem. You still can. When will Amazon off-campus try start? Yeah, Amazon honestly hires throughout the year. If you have good resume, if you have good network, get a referral, apply करो, अच्छे हो तो हो जाएगा. प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है हमारी, तो उनको देख सकते हो. बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे ही हैं, उनको देख सकते हो. आई डिड नॉट डू CP. स्टार्टिंग में बहुत टाइप्स है, तो क्या इंटरव्यू में अप्रोच पूछ सकते हैं क्या? बिकॉज आई यूज HTML एंड C++. देखो यार, इंटरव्यू में in some interviews STL is not allowed. ठीक है, बेसिक चीजों के लिए STL is allowed, but if you are using STL for binary search, then it's wrong. But if you're using something like priority queue, inbuilt priority queue जो भी होती है, stack list, तो ऐसी चीजें are allowed. How to handle college and coding side by side. We've made a dedicated video on this. अभी इतनी जल्दी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो you can refer to that. डिफरेंस बिटवीन DSA एंड CP. देखो यार, CP में पहली बात तो स्टोरी लाइक क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, रियल लाइफ का एक सिनेरियो सा दे देंगे आलिस पॉप करके. और पहली बात तो CP में स्टोरी होता है. सेकंड, CP इज लाइक अ कॉन्टेस्ट और समथिंग, कंपटीशन होता है उसमें. ऐसा नहीं होता है कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए तो CP कर ली. इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉन्टेस्ट, जो कि बहुत बड़े स्केल पे होता है. रेज्यूमे शेयर कर दो, उसकी एक अलग सी वीडियो बना सकते हैं. विल थिंक ऑफ इट. हेलो हेलो प्रज्वल. आई थिंक वी आर मोस्टली डन विद क्वेश्चंस. तो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं और. विच इज बेटर फॉर स्टार्टअप, BCMC और B.Tech? ऑनेस्टली यार, देखो, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट आई स्टिल थिंक B.Tech इज बेटर. आई थिंक. हाउ मेनी राउंड्स इन Amazon 6 month internship? I honestly don't have an idea of internship. मुझे फुल टाइम का ही पता है यार. सैलरी कितनी है? Any information about open source? तो यार देखो, as times are getting changed, as we move ahead in time, ओपन सोर्स की भी उतनी कीमत बढ़ रही है. ठीक है, इफ यू आर समवन हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, इट्स अ ग्रीन सिग्नल. गो फॉर इट. कंपनीज विल लव इट. ML डेवलपर्स की जॉब्स होती हैं, ब्रिटिश और होती होंगी यार. resume shortlist की ट्रिक बताओ. we've made again a lot of videos on how to build a resume, so you can refer to that. मतलब मेन पॉइंट भी कि मैं इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगा सब कुछ. ठीक है, टेक्स टाइम टू कन्वे इन्फॉर्मेशन. तो इट्स बेटर इफ यू रेफर टू ऑलरेडी मेड वीडियोस. ठीक है, यूट्यूब पे यू कैन सर्च देम एंड शुड बी गुड टू गो.
I think we're done with it. I hope you got to learn something through this video. Thank you so much for watching and have a good day. Have a good night.